हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? गुड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. फाइन, वी हैव फिनिश्ड विद चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स. दिस इज द कनेक्टिव चैप्टर टू द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हमने पॉलिनोमियल को डिटेल वर्कआउट किया. अब उसके बाद सेकंड के बाद थर्ड चैप्टर भी कर सकते थे लीनियर, बट लीनियर से सेकंड के साथ फोर्थ चैप्टर की कनेक्टिविटी बेटर है. सो लेट्स फिनिश इट. छोटा सा टॉपिक है एंड थर्ड कंपेरेटिवली थोड़ा सा लेंथी भी, टॉपिक भी लंबा है और थोड़ा सा टेक्निकल भी है. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस फोर्थ चैप्टर, दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वी हैव ऑलरेडी ब्रीफ्ड इन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल that we have a linear polynomial when the power of x is 1, we have a quadratic polynomial when the power of x is 2, we have a cubic polynomial when the power of x is 3, we have a biquadratic polynomial when the power of x is 4. फाइन, वैसे ही उसके साथ साथ लीनियर का एक जीरो होता है, क्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 2 जीरो होते हैं, क्यूबिक के मैक्सिमम 3 जीरोस होते हैं, बाइक्वाड्रेटिक के मैक्सिमम 4 जीरोस होते हैं. ये जीरोस वो नंबर होते हैं जिसको उस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट किए तो आंसर जीरो आता है. वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, देन दोस नंबर बिकम्स जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. दिस वाज अ ब्रीफ एंड ये कहीं ना कहीं अभी फोर्थ चैप्टर में यूज होगा. तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भी बच्चों ने सेकंड चैप्टर का बिल्कुल टच नहीं किया हुआ, वो एक बार सेकंड चैप्टर की 2F बुकलेट जो फैक्टराइजेशन की है, जो यूनिवर्सल में 2F, देयर आर 3 बुकलेट्स ऑफ सेकंड चैप्टर. 2F फॉर द फाउंडेशन ऑफ सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने फैक्टराइजेशन की डिटेल ब्रीफ की है, जो 6, 7, 8, 9 से लिंक्ड है. फिर 2A was 10th A booklet of NCERT and then 2B booklet basically consists of miscellaneous question of second chapter. Fine. Same way आप जब फोर्थ चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, उसमें वर्किंग में the very very important part is what a quadratic polynomial is. So quadratic polynomial का स्टैंडर्ड फॉर्म जो quadratic polynomial का है वो है ax square plus bx plus c is equal to 0. The quadratic polynomial is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are real number. Where a, b, c are real number. Are real number. ये a, b, c कोई भी real number हो सकते हैं. This a, b, c can be any real number, but make sure that a cannot be equal to 0. हमारा a 0 नहीं हो सकता. अगर a 0 होगा तो क्या होगा जी? The moment we get this a is 0, so we will, if this a is 0, so 0 into x square is 0, so we will left with what? Bx plus c. Now this is a linear equation. This is not a quadratic equation. So when we say a quadratic equation standard form is, it is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c can be any real number, but a cannot be equal to 0. Why this a cannot be equal to 0? The moment this a becomes 0, this portion will become 0 and we left with bx plus c. This is not a quadratic. Now the maximum power in the equation is 1. This will become linear equation. This is fine. That's good. Now what the next point is, after a quadratic form, students sometimes think that every quadratic equation should always go for these 3 terms. ऐसा नहीं है. आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं, सपोज करो मैं कोई एग्जांपल लिखता हूं. Let us say my example is 2x square plus 5x minus 3. This is quadratic. By chance, if I have an equation like this, still the maximum power is 2. It is quadratic. This is quadratic. And if I just have this, this is also quadratic. So this is a standard form of a quadratic equation, but maximum power is 2. This is also quadratic. There is no constant, no x term, but still the maximum power is 2. So this is quadratic. So any equation is turned out to be quadratic equation when the maximum power is 2 in that. Maximum mean that x degree of the equation is 2. Degree of the equation has to be 2. Now degree is what? Degree is the maximum power in the equation. So then the degree of the equation is 2, degree of equation is 2, degree of equation is 2. It doesn't mean that whenever it is a quadratic it has to be in the standard form. आप चाहे इसकी तीनों टर्म भी हो सकती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसकी 2 टर्म भी हो सकती हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 1 टर्म भी हो सकती है, बट उसकी मैक्सिमम पावर 2, दैट इज डिग्री ऑफ द इक्वेशन शुड बी 2. ठीक है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज, व्हाट इज जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल?
किसी भी क्वाड्रेटिक की पॉलिनोमियल्स के हाउ टू फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके अंदर व्हाट वी सेड कि इफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax square bx plus c, let us consider some number x is equal to alpha. कोई भी एक नंबर लिया, x can be 2 3 4 5, and if we put this value of alpha in this equation, x is equal to alpha in this equation, what it becomes? It becomes this will become a alpha square a, we'll replace this x by alpha square plus b alpha plus c is equal to 0. Now this quadratic equation at x is equal to alpha becomes a alpha square b alpha plus c, and if this alpha satisfy this left hand side equal to 0, then this alpha will become 0 of this quadratic polynomial, or we can say this will become root of the quadratic equations. This will become solution of the quadratic equation. तो इस नंबर को हम रूट्स भी कह सकते हैं, इसको सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि दिस नंबर सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. क्वेश्चन एग्जाम में कैसे भी आ सकता है कि व्हाट अबाउट दिस नंबर, if at this number this left hand side is equal to this right hand side, then this number will become roots of this equation. This can be equal, this can be written as solution of this equation, or we can say this number satisfy this equation. So we can answer this x is equal to alpha in any of the form. Fine. Now, so this is the next point. This alpha can be any number. It can be any real number, 1 2 3 1 by 2 1 by 3. It can be any integral number, fraction number. At any number, if this equation satisfies this format, then this number will become roots or solution, or this number satisfy the equation. That's a very very important part. Now the next very important part is, if I have this equation like this, ax square plus bx plus c is equal to 0, this equation has a polynomial ax square plus bx plus c. When you write left hand side equal to right hand side like this with equal to sign, this becomes equation. And when we remove this equal to sign and we write this only left hand side, this becomes quadratic polynomial. So please do see to it, most of the time when we talk about degree 2, so we don't find much of the time talking to our students that they always say it ki this, sometimes they say it equation, sometimes they say it polynomial. Equation has to has a equal to sign, and when you take the left hand side without equal to sign, only then it becomes a polynomial. Clear? Fine. Now in this quadratic polynomial, we are very clear how to factorize this polynomial. In last chapter 2F booklet, we have given different type of factorization method to factorize this quadratic polynomial, by taking common, by taking middle term split, by completing the squares. So we are very thorough to make how to factorize this polynomial. और अब इस वाले चैप्टर में, 4th चैप्टर में भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में पॉलिनोमियल से डील करना है. हमारा 90% काम अब भी चैप्टर 2 वाला रिलेटेड है कि पॉलिनोमियल के साथ कैसे प्ले कर रहे हैं. सेम वर्किंग विल बी देयर. दैट्स व्हाई आई पिक्ड आफ्टर चैप्टर 2 चैप्टर 4 लीडिंग चैप्टर 3, बिकॉज दैट्स अ लीनियर. उसके फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है. इज दिस फाइन? श्योर. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट zero of the polynomial, you know, if you put x is equal to any number, let us say alpha in this polynomial, then this will become a alpha square b alpha plus c, and if this value becomes 0, then we call it 0. This is 0 of this polynomial. जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो ये अल्फा जो नंबर होगा वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाएगा. जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होगा तो यही नंबर जब 0 देगा तो वो रूट्स ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा. तो सेम पार्ट है कि अगर आप पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर रहे हैं, और जब वही फैक्टराइजेशन जब आप इक्वेशन में जा रहे हैं और जब उसको एंड तक सॉल्व करेंगे तो उसके जो आंसर आएंगे उनको रूट्स सॉल्यूशंस और सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन नंबर बोला जाता है. फाइन. नाउ लेट अस सी हाउ टू स्टार्ट द बेसिक सिंप्लीफिकेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. कितने टाइप से इसको वर्कआउट करते हैं. इस फॉर्मेट में जो हमारा वाला फॉर्मेट है, इसमें वी कैन डू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वी कैन सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 ways. देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस.
So first method is factorization method. Very important. And this we've done it very thoroughly in second chapter. We can solve the quadratic equation first by which method? Factorization method. Second was completion the square method. Completion the square method. And third was formula method, quadratic formula method, quadratic formula method. फिर से देखिए जी, any quadratic equation we can solve a quadratic equation by three methods: factorization method, completion the square method and quadratic formula method. अब आप देखें इसमें ये वाला जो मेथड है ये लास्ट ईयर से सीबीएसई में डिलीट हो गया है, पर इसके क्वेश्चन बिकॉज बुक हैज नॉट रिवाइज, तो वही बुक चल रही है, तो उसमें दो तीन क्वेश्चन है वो हम आपको साइड बाय साइड सर्कल करवा देंगे कि ये वाले क्वेश्चन they are written to solve this set of question by using completion the square method. Now this is no more in the course, so we left with only two methods, factorization and quadratic formula. उसमें भी factorization we have done enough in a second chapter, बहुत डिटेल में हमने second chapter में बच्चों के साथ किया है from booklet 2F, 2A, 2B. So our factorization is in a very good position. Fine. So this is more or less over. We have to review this part. And this is the only topic basically is to be done in a quadratic equation. So quadratic equation में दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमको. एक ये वाला क्वेश्चन है जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे. तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हम तीन मेथड से क्वेश्चन करते हैं. ये मेथड डिलीट हो गया तो न्यूमेरिकल में सिर्फ ये दो मेथड रह गए. जब भी कोई क्वेश्चन आएगा या तो उसको फैक्टराइज की फॉर्म में लेके आएंगे या फिर उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मेथड में लेके आएंगे. तो दूसरा टाइप क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर? Then the next type of question in this chapter is the statement questions. आपको एक प्रॉब्लम दी होगी, उस प्रॉब्लम को रीड करके आपको उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. सॉल्व फिर से ऐसे करेंगे. तो दिस द होल चैप्टर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट एंड स्टेटमेंट पार्ट. न्यूमेरिकल पार्ट लिंक्स विद दीज टू मेथड्स. स्टेटमेंट पार्ट में आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, स्टेटमेंट को रीड करके हमको प्रॉपर इक्वेशन बनानी है और इस इक्वेशन को फिर से सॉल्व इन्हीं दो मेथड से करना है. इज दिस फाइन? ठीक है जी. सो हम अभी स्टेटमेंट वाला पार्ट, देयर आर टू टाइप्स. फाइन. तो टाइप 1 से पहले डील करते हैं. तो टाइप 1 से जब आप डील कर रहे हैं तो इसको वर्किंग में हमने कैसे किया जी? फैक्टराइजेशन को हमने बहुत थॉरली कवर किया 4F बुकलेट में. F मींस फाउंडेशन वर्क, वेरी इजी वर्क ऑफ दैट चैप्टर. अब आपको उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन नहीं करने बैठ जाने लिए. एक अच्छा बच्चा है सिर्फ पेज टर्न करेगा और पेज के बॉटम में साइन कर देगा ऑल थॉरो, नेक्स्ट ऑल थॉरो, क्योंकि मैक्सिमम 4F इज अ फाउंडेशन, दैट इज अ रिवीजन वर्क. जहां आपको लगता है कि आपको यार इस पर्टिकुलर पार्ट पे थोड़ा सा डाउट है, उसको आप ट्राई करेंगे. और अगर कोई बच्चा वीक है तो वीक बच्चों के लिए 4F इज एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट. दे मस्ट सी टू इट कि अगर उनको वीक बच्चे को 4F नहीं आती है तो 4A प्योर एनसीईआरटी है और 4B एडवांस है. B is basically a mixture of 5-6 top level books questions. Fine. B booklet में जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको मजा आ जाएगा. Fine. But आपको you should make sure to make NCERT in a good position. You have to be a very very good position of 4F foundation booklet, फिर A booklet, फिर B booklet. B booklet भी इस वाले केस में B booklet के अंदर now in this chapter we have a two part, numerical part and statement part. हमने B booklet के भी दो पार्ट कर दिए हैं, B1 एंड B2. 4B1 में सारा न्यूमेरिकल पोर्शन है, 5 डिफरेंट बुक्स, एंड 4B2 में सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके अंदर वी हैव अ स्कोप टू राइट डिटेल्स. सो आप कोशिश करें कि जब आप ए बुकलेट करते हैं तो ए एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट टू गो विद अ वेरी गुड स्कोरिंग. इट कैन मैक्सिमम टेक यू टू 80%. पर आप जब आप बी बुकलेट करते हैं तो सीबीएसई, उसके बाद आप किसी भी लेवल में जाके वर्किंग करेंगे तो आपको लगेगा कि योर पोजीशन इज वेरी वेरी गुड, एंड टेक्निकली ऑल द क्वेश्चंस आर ब्रीफ्ड विद द आंसर एंड अ डिटेल्ड सॉल्यूशन साइड बाय साइड. फाइन. सो दिस वाज द ब्रीफिंग कि दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 3 बुकलेट्स, 3 पोर्शन, 4F, 4A. दिस इज फाउंडेशन बुकलेट, दिस इज एनसीईआरटी बुकलेट. एनसीईआरटी बुकलेट को प्रैक्टिस करने के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन 4B1
और 4b2 में दिए हुए नहीं। वो क्यों? 4b1 इज प्योरली न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड 4b2 इज प्योरली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। द होल चैप्टर कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, न्यूमेरिकल एंड स्टेटमेंट। तो 4a इज एनसीईआरटी, इसमें कंप्लीट एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी और स्टेटमेंट भी। अब डिटेल क्वेश्चन अदर देन एनसीईआरटी हमने 4b1 में सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल दिए एंड 4b2 में नॉन एनसीईआरटी के सारे स्टेटमेंट क्वेश्चन डाल दिए। This was a briefing of the 4 booklets we have already given to you. आपको assignment booklets की फाइल मिली है, उसमें 4 booklets थी, 4F, 4A, 4B1, 4B2, and this is briefing for it. So आप 4F को आप रिव्यू करना शुरू कर दें। उसमें आपको जिसको भी सेकंड चैप्टर 50-60% लेवल का भी आता है उसको 4F में कोई क्वेरी नहीं आएगी। बाय चांस कुछ डाउट आता है तो व्हाट्सएप करें, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। दिस वाज द रिव्यू वर्क, फाउंडेशन वर्क, विच इज द रिवीजन ऑफ 7th, 8th, 9th लेवल वर्किंग। फाइन, तो वर्किंग शुरू करते हैं 4A बुकलेट की एक्सरसाइज 4.1 से। The first question of the exercise is first question, check whether the following quadratic equations, following are the quadratic equations। हमको ये बताना है कि इस पहले क्वेश्चन में 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में 4.1 क्वेश्चन 1 the equation given to you is x plus 1 whole square is equal to 2x minus 3। The first part of exercise 4.1 question 1, fine। Now he is saying x plus 1 whole square is equal to 2x minus 3। Is this equation a quadratic equation? So equation is said to be quadratic when it's of degree 2। तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पावर 2 है, ये quadratic है, ऐसा नहीं है। If this equation is not in the simplified form, standard form equation की क्या होती है, इस फॉर्म में लाना, ax square plus bx plus c। आपको इस फॉर्म में लाके बात करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक है या क्वाड्रेटिक नहीं है। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 2x माइनस 6। जब इक्वल टू आएगा तो सामने इंप्लाइज आएगा, जब इक्वल टू यहां नहीं आएगा तो सामने इक्वल टू आएगा। दिस इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू दिस। अगर यहां इक्वल टू है तो फ्रंट में इंप्लाइज आएगा, और अगर यहां इक्वल टू नहीं है, स्केलेड पॉलिनोमियल है, तो फ्रंट में इक्वल टू आएगा। बेसिक डिसिप्लिन हाउ टू राइट अ स्टेप, फाइन। नाउ दिस इंप्लाइज दिस 2x when will come this side, this will be cancelled, तो x स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस 6 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 6। तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 दैट इज x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। द फाइनल इज दिस। नाउ इफ वी वांट वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म। वो कैसे लिखेंगे, आप x स्क्वायर को x स्क्वायर लिखें, फाइन, और x की टर्म नहीं है तो आप उसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 7। तो ये आ जाएगा a कुछ भी नहीं है, देन माई a इन दिस केस इज 1, 0x is 0 plus 7. So this can be written like this. So why this is the standard form of writing it. उसने सब बोला नहीं है, but sometimes if somebody say कि सर इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, इसमें x का कोफिशिएंट कुछ नहीं, हम ऐसा लिख सकते हैं। अदरवाइज आप यहां से भी देख के कह सकते हैं पावर ऑफ x is 2, so this is a quadratic equation। अगर यहां सिंप्लीफाई करने के बाद पावर ऑफ x 2 आ रही है फाइनल रिजल्ट में, तो वो क्वाड्रेटिक है। अदरवाइज whatsoever it is, it may be linear, it may be cubic, it may be biquadratic, we will simply say it is not quadratic। उसने दो ही आंसर पूछे हैं गेम में, क्या ये क्वाड्रेटिक है तो राइट क्वाड्रेटिक, इफ इट इज नॉट क्वाड्रेटिक राइट इट्स नॉट क्वाड्रेटिक। तो अगर पावर 2 आ रही है, डिग्री 2 आ रही है उसकी, तो वो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज इट इज नॉट क्वाड्रेटिक। तो ये इसके 8 पार्ट्स हैं। तो सेम वर्किंग अगर आप करेंगे किसी भी क्वेश्चन में, बेसिक सिंप्लीफिकेशंस, part 1, part 2, part 3, these booklets you have, that all questions been explained very thoroughly, very systematically, the way you have to write in a board। ये solution board की solution है, जो मेरी booklets में मिले हुए हैं आप board में लिखें। flawless working है जिसके अंदर, देखिए आप इसके अंदर first, second, third part straight है। now if you look at the fourth part, what he says in fourth part, x minus 2
x plus 1, x minus 1, x plus 3। कहते हैं बताओ कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। फिर से विल फर्स्ट सिंप्लीफाई एंड देन सी टू इट, क्या ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म है या ये फॉर्म नहीं है। तो आप देखिए वर्किंग करेंगे, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, then it is plus x minus 2x minus 2, then again multiply this number with both x square plus 3x minus x minus 3। फिर से देखिए जो चेक कर लें, x into x is x square plus x minus 2x minus 2, x square plus 3x minus x minus 3। this x square plus x square, जब ये x स्क्वायर इधर आएगा तो ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये x स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर will get cancelled। Fine, so what we left in, your x minus 2x is minus x minus 2 is equal to 3x minus x is what, 2x, 3x minus x is what, 2x minus 3। Fine, तो अब आप क्या करेंगे, we have to simplify for x, तो फिर से आप इसको इधर ले आए, तो ये माइनस एक्स है और ये प्लस 2x इधर आके क्या रहेगा, माइनस एक्स 2x, तो दिस विल बिकम व्हाट, माइनस 3x। फाइन, इस माइनस 2 को आप उधर लेके जाएं, माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 विल बिकम व्हाट, माइनस 1। दिस माइनस एंड माइनस विल गेट कैंसिल, सो वी विल हैव 3x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/3। सो वी डोंट हैव टू सॉल्व दिस। आप अगर इसको देखें तो आप इसको यहाँ पे हमको x की वैल्यू नहीं निकालनी है, आप यहाँ पे भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। आप यहां पे क्वेश्चन छोड़ देंगे, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। सो सिंस वी ऑलरेडी कैंसिल विद पावर 2, सो दिस इज नो मोर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट अगर कहीं लीनियर में क्वेश्चन आता है, सॉल्व करना है तो हमें सॉल्व कर दें, अदरवाइज क्वाड्रेटिक की फॉर्म में कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करके आप यहां से छोड़ दें। देयर इज नो एक्स स्क्वायर इन दिस, फाइन, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक स्टेप अगर आप नेक्स्ट लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, दिस इफ यू ब्रेक इट दिस साइड, दिस विल बिकम व्हाट, माइनस 3x इज इक्वल टू, ये इधर आ गया प्लस माइनस 1, माइनस माइनस कट गया, 3x इज इक्वल टू 1। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। उसका सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर 1/, पर वो पूछ नहीं रहा। द पावर ऑफ x इज 1, सो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज लीनियर। इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज लीनियर। सो नाउ नेक्स्ट इज अगेन वेरी सिंपल पॉइंट। आप देखें इसका 7th पार्ट देख लें आप, दिस इज x plus 2 whole cube x square minus 1, x plus 2 whole cube 2x into x square minus 1. This is a 7th part. This is a 7th part. Fine. Okay, look at it. 7th part. Once again, this implies a plus b whole cube. It is a cube plus 3a square b plus 3ab square. B square is 2 square plus b cube is equal to 2x into x square is 2x cube. 2x into x square is 2x cube minus 2x. Fine. This is a portion left hand side. We extended a plus b whole cube. A cube plus 3a square b. Yeah, this is a, this is b. 3a square b plus 3ab square plus b cube. And right hand side is 2x multiplied by this and this. Now simplify it. See what the last step is. If in the last step I have x की power 2, so I will say this is a quadratic equation. If there is no x square, fine, then it is not a quadratic equation. So let's finish it this point. This is x cube plus 6x square plus 4 into 3, 12x plus 8, 2x cube minus 2x. Fine. Now, if you bring this x cube to this side, x cube minus 2x cube, क्या आएगा ये result? 1x cube minus 2x cube is minus x cube. Fine. Then this is 6x square.
दिस इज 12x एंड ये -2x इधर आएगा, 12x -2x इधर आके प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 14x. फाइन बच्चे, प्लस 8 इज इक्वल टू 0. नाउ दिस इज द फाइनल सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस पोर्शन. आगे इसको सॉल्व किया जा सकता है, बट ही इज नॉट आस्किंग अस द रूट्स ऑफ दिस फॉर्म, ही इज नॉट आस्किंग द सॉल्यूशन ऑफ इट. उसने क्वेश्चन सिंपली हमको ये पूछा है कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है. यहां से कुछ नहीं पता लग सकता, हो सकता है कि क्यूब क्यूब दोनों साइड से कट रहा हो, तो आपको उसको पूरा सिंप्लीफाई करना है. नाउ दिस इक्वेशन हैज अ डिग्री, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिग्री 3, so this is the cubic equation, therefore it is not a quadratic equation. Since x, this is which is not a quadratic equation, which is not a quadratic equation. Fine. So this is the way we have given some more question in example also of the same, कि किसी भी इक्वेशन को पहले आप सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट है सिंप्लीफिकेशन का, अगर उसके अंदर पावर 2 आती है, पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर पावर 2 नहीं है, मैक्सिमम दैट इज डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2 नहीं है, तो वो कोई भी इक्वेशन हो सकती है. अगर 1 डिग्री है तो लीनियर है, क्यूबिक है, हमको वो ब्रीफ नहीं करना. इफ पावर 2 इज देयर देन इट इज क्वाड्रेटिक, इफ पावर 2 इज नॉट देयर देन इट इज नॉट क्वाड्रेटिक. दिस इज ऑल फॉर दिस बेसिक लेक्चर ऑफ अ इंट्रोडक्शन ऑफ अ क्वाड्रेटिक, एंड दिस इज ऑल फॉर दिस वर्किंग. आप इसके पैरेलल क्वेश्चन ब्रीफ देखते जाएं from 4A and the 4B1 booklets. We'll continue with the same part of the working for how to solve a quadratic equation by factorization method and by formula method. Okay, see you then by next class. Bye bye. See you in the next class. Bye bye. Thank you very much.